We're going to carry on where we stopped last week. We are discussing on the various aspects of our personality. Last 3 weeks spoke about the eye, the ear, and also the tongue. हम जहाँ रुके थे वहीं से आगे चलेंगे और हम जो मनन कर रहे थे हमारे शरीर के अंगों के बारे में, हमारी आंख, हमारी जुबान, हमारे कान, उसी से हम आगे चलेंगे आज। The theme for the last few weeks has been offering ourselves to God as a living sacrifice, or offering the body as a living sacrifice. और हमारा जो विषय है पिछले कुछ हफ्तों से जो चल रहा है वो ये है कि अपने शरीर को एक जीविता बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाना। And based on Romans chapter 6 verse 13 and Romans chapter 12 verse 1. और हिब्रानियों 6:13 और Not Hebrews, Romans 12:1 and Romans 6:13. रोमियो 6:13 और रोमियो 12:1 के अनुसार हम मनन कर रहे थे। Now today we're going to talk about one more aspect of our personality, not necessarily our body, but the inner man, the heart of man. और आज हम एक और विषय पे एक और बात पे मनन करेंगे जो कि शरीर का अंग तो नहीं है पर मनुष्य के अंदर का मनुष्यत्व उसके ऊपर हम बात करेंगे। In the Old Testament, in Joel 2:13, it says, "Render your heart to God, render your heart, not your garments." और योएल 2:13 में जैसे लिखा है अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर की ओर फिरो। The New Testament, the equivalent to that is that in our heart we set apart Christ as Lord. और नए नियम के अनुसार अगर देखें तो कैसे प्रभु यीशु को अपने हृदय में हम अलग करके उसको जगह देते हैं। What is the heart of man? मनुष्य का हृदय क्या है? When God created man, he breathed and nostril breath of life in clay, and the man became a living being. जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मट्टी से उसको स्वरूप किया और उसमें अपनी सांस को फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। This breath of life described in the book of Isaiah 57:16 as the spirit of man. और यशायाह 57:16 के अनुसार जो कि उसमें बताया गया है वो है मनुष्य की आत्मा। Psalm 51:17 talks about the heart of man and the spirit of man being the same entity. और भजन 51 में भी लिखा है जो ये दोनों बातें मनुष्य की आत्मा और मनुष्य का भीतर का मनुष्य ये दोनों एक ही चीज है। In Proverbs chapter 20 verse 27, it refers to the inner man being the spirit of man. और रोमन्स 20 में Proverbs 20:27. प्रोवर्ब्स 20 और उसी 27 के अनुसार ये जो मन की बातें जो है ना ये मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, ये मन की बातों को खोज करता है। So breath of life, spirit of man, heart of man, inner man are all the same entity. तो भीतरी मनुष्य, मनुष्य का आत्मा, मनुष्य का उसकी जो अंदर के आत्मा की बात जो करती है ये सब एक ही चीज है। भीतरी मनुष्य Conscience of man is to do with the heart of man, the spirit of man. और मनुष्य का जो विवेक है वो उसके हृदय से ही उसको वो बनता है। So when we sin against God, what is affected is also our heart. Our spirit is affected, and that's why we have a guilty conscience. तो इसीलिए जब हम परमेश्वर के विरुद्ध कुछ पाप करते हैं तो हमारा जो हृदय है वो उसको वो दुखी होता है और इसीलिए हमारा जो विवेक है वो हमारे को बताता है कि तुमने गलत किया है। It's very, very important that our heart is totally committed to the Lord. ये बहुत जरूरी है कि हमारा हृदय जो है परमेश्वर की ओर पूरी तरह से समर्पित हो। That's what God sees. और यही परमेश्वर देखते हैं। Man looks at outward appearance, God looks at the heart. मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है पर परमेश्वर भीतरी मनुष्य को देखता है। Now the heart is a very deceitful entity. और जो मनुष्य का हृदय है ये बहुत धोखेबाज है। In the Old Testament, you read in Jeremiah 17 chapter verse 5, the heart is deceitful about all things and beyond cure, who can endure it? और यिर्मयाह 17:5 में जैसे लिखा है कि मनुष्य का जो मन है वो बहुत बहुत 17:5 ब्रदर 17 chapter verse 5, yeah, very deceitful. Sorry, 17:9, not 17:5. 17 chapter verse 9. Are very deceitful beyond all things and beyond cure, who can endure it? और इसलिए उसमें जैसे लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उससे साध्या रोग लगा है और उसका भेद कौन समझ सकता है। धोखा देने वाला होता है, deceitful. What is deceit? Deceit means trying to be what you are not. धोखा देना मतलब कि आप जो नहीं है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। So the heart appears to be very nice, but it actually is not nice. It is deceitful. It is the sin in the heart. और हृदय जो है वो दिखाना चाहता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं पर वास्तव में ऐसा नहीं है, उसके अंदर जो है पाप भरा हुआ है।
When sin enters the heart, we don't even realize it. और जब पाप मनुष्य के हृदय में आ जाता है तो हमारे को इसकी हमें पता भी नहीं चलता इसके बारे में। That is why David, when he prayed to the Lord in Psalm 139, verse 23 and 24, he says, "Search me, O Lord, and know my heart." और इसलिए भजन 139 उसकी 23 और 24 में दाऊद कहता है कि प्रभु मैं ईश्वर मुझे जांच करके जान ले, मुझे परख कर कि मेरे में कोई बुरी चाल है कि नहीं। Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, lead me in the way everlasting. और देख वो कहता है कि हे ईश्वर मुझे जांच करके जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और आनंद के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। We don't take our heart to make sure it is clean and without sin. It only happens when we are a God pleaser, not a people pleaser. और हमारा हृदय जब एक ही तरीके से वो शुद्ध हो सकता है, पवित्र हो सकता है, जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनते हैं, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं। It's very deceitful. There is sin in the heart. We don't even know there is sin in the heart. और ये बड़ा धोखेबाज होता है मन, और हमारे हृदय में अगर होता है तो हमें पता भी नहीं चलता इसके बारे में। That's why the apostle, not the apostle Paul, apostle Paul also spoke about heart being pure. But और इसलिए when the Lord spoke to the Pharisees, who are hypocrites, और जब प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों के जो बड़े वो दिखावटी करते ढोंग कर रहे थे, उनके बारे में ऐसे बोला। in the book of Matthew 23rd chapter 25 to 26, he told them, मत्ती उसके 23वां अध्याय उसकी 24 और 25 और 26वीं आयत में उन्होंने कहा, "Woe to you, Pharisees, teachers of the law! हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, You clean the outside of the cup and dish, but inside full of greed and self-indulgence." You clean the outside of the cup and dish, but inside they're full of greed and self-indulgence. परंतु वह भीतर से असम्य से भरा हुए हो। Blind Pharisee, first clean the inside of the cup and dish, the outside also will be clean. और ये उनसे कहता है कि हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मान कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएं। So we must first take care of the heart of man before everything else falls in place. इससे पहले हमारे को अपने मनुष्य को शुद्ध करना है, इससे पहले कि हम जो है बाहर के मनुष्य को शुद्ध करना शुरू करें। What the Lord told people was we read in the 15th chapter of Matthew, what goes in the man's heart doesn't make him unclean, what comes to the heart makes him unclean. और मत्ती 25वें अध्याय में प्रभु मसीह ने बोला कि जो मनुष्य के शरीर के अंदर जाता है उससे मनुष्य दूषित नहीं होता, पर उसके मन से जो बाहर आता है उससे दूषित होता है। The words we speak come from the heart, and that's what makes us unclean. और जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे हृदय से आते हैं और उसी से हम दूषित हो जाते हैं। When the heart is clean, the words will be clean. और जब हमारे मन शुद्ध होगा तो हमारे शब्द भी शुद्ध होंगे। When you compare the 7th chapter of Mark, verse 21-22, and take along with that Matthew chapter 15, verse 19, I read in Hindi only because it takes a lot of time to go to all the points in English. There are 14 different things mentioned by Jesus which are in the heart of man. और मरकुस के 7वें अध्याय, मत्ती के 25वें अध्याय का अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारी बातें हैं जो मनुष्य के हृदय से निकलती हैं, उसका वर्णन यहाँ पे किया है। Let's read Matthew chapter 15, verse 19. Matthew 15:19. Matthew 15, verse 19. Think of the heart of man. Yeah. क्योंकि कुचिंता, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। Okay, 7 things are mentioned by Jesus here. In addition to that, we find including out of 7, 6 are included in Mark 7 chapter 21-22 plus 7 more things. So can you read Mark 7 chapter 21-22? क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। So the heart is full of all these things. We don't realize it simply because it's very deceitful. और ये सारी बातें हमारे मनुष्य के हृदय से निकलती है और हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि ये बड़ा धोखेबाज है। How these things get into the heart? और ये सारी बातें हमारे हृदय में आ कैसे जाती हैं? Is based on what we see and what we hear. और ये इस बात पर आधारित होती है कि हम क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं।
That's why I spoke first about eye in the first session. Second session, I spoke on the ear. And third session, I spoke about the tongue. But between all these three, what is the common factor is the heart. और इसीलिए भाई ने पहले आंख के बारे में, फिर कान के बारे में, फिर जुबान के बारे में बोला। पर इन तीनों के बारे में जो जो एक चीज जो तीनों में है वो है मनुष्य के हृदय। Now, to make sure a heart right before God, we must first of all be God pleasers, not people pleasers. और एक बात जो सबसे पहले बात हमारे को अपने आप को सही करने से पहले जो देखनी है वो ये कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले नहीं। When we are people pleasers, we only are concerned about what we speak, so people can hear that, and we are concerned about how we live because people can see how we live. और जब हम लोगों को पसंद करने वाले होते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि लोग कैसे मेरे को देख रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये इसी बात पे हम हम उसी हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। But what we speak and how we live depends on what is there in the heart. और हम क्या बोल रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, ये उस बात पे निर्भर करता है कि हमारे हृदय में क्या है। If the heart is not cleansed of sin, then our lives will not be cleansed of sin. अगर हमारा हृदय से पाप धुला नहीं है तो हमारे जीवन भी पाप से नहीं धुलेगा। That's why God examines the heart. इसलिए परमेश्वर हृदय को जांचता है। Now, in our heart, we must be a people who seek the very heart of God. और हम जो लोग हैं हमारे को ऐसा मनुष्य बनना है जो परमेश्वर के हृदय को ढूंढता हो। And the Holy Spirit helps us to cleanse our hearts. और पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करता है कि हम अपने हृदय को शुद्ध कर सके। On the Old Testament, there was the covenant of circumcision which prescribed by God to those who follow the law of Moses. और पुराने नियम में व्यवस्था थी, मूसा के जो आज्ञा नियम मानते थे कि उन्हें खतना होना पड़ता था। The act of circumcision, which is a physical act, was a confirmation of the covenant God made in the Old Testament. और ये जो खतना था एक शारीरिक रूप से दिखाना होता था कि मैंने जो व्यवस्था है उसको मैं मान लिया है। And but the real circumcision God wanted not a physical circumcision, but a spiritual circumcision, circumcising our hearts. और परमेश्वर जिस खतने को ढूंढते हैं वो शरीर का खतना नहीं पर हमारे हृदय का खतना। That's why in the book of Jeremiah chapter 4 verse 4, God says, circumcise the hearts to the Lord. इसलिए प्रभु ने यिर्मयाह 4:4 में कहा कि यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ अपने मन का खतना करो। And circumcision means putting off. That's the meaning of the circumcision, putting off. और खतना करना मतलब अलग करना, दूर कर देना। Removing something which is in the heart. हमारे हृदय में जो चीज है उसको दूर कर देना। Now, in the book of Romans, chapter 2, verse 29, God spoke about the people who are God pleasers, what they would do, who seek from God. और रोमियो 2:29 में प्रभु ने बताया कि वो लोग जो परमेश्वर के हृदय को ढूंढ रहे हैं उनके बारे में। In fact, he rebuked the Jews for their tendency to accept praise from each other. और वो जो यहूदी लोग थे उनको एक तरह से फटकार लगाई कि कैसे वो एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते रहते थे। In John 5:44, he told the Jews, यूहन्ना 5:44 में यहूदियों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, how can you be believer if you accept praise from each other, yet make no effort to obtain the praise that comes from God? और तुम जो एक दूसरे का आदर चाहते हो और वह आदर तो अद्वैत परमेश्वर की ओर से नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? So if you accept praise from each other and respect each other and speak well of each other, and you make no effort to obtain the praise that comes from God, what kind of believer are you? Can you be? तो कैसे विश्वासी हो सकते हैं हम अगर हम एक दूसरे का ही आदर करते हैं, एक दूसरे से आदर चाहते हैं, परमेश्वर का आदर नहीं करते, तो हम किस प्रकार के विश्वासी हैं? How does one seek to please God? एक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकता है? How can they expect praises from God? और कैसे वो व्यक्ति परमेश्वर से बड़ाई की आशा कर सकता है? That's brought out beautifully by Paul in the letter of Paul to Romans, chapter 2, verse 29. और इस बात को पौलुस ने जो रोमियो 2:29 में बड़ी सुंदरता से उसको बताया है। True circumcision is circumcision of the heart by the Spirit, not by the written code. Such a man's praise is not from men, it is from God. और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। For a heart to be right before God, we must ask the Holy Spirit to show our hearts to us. और हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमारे
हृदय को परमेश्वर को प्रसन्न होने के लिए हमें पवित्र आत्मा जी से बोलना है कि मेरे हृदय को मुझे दिखा। In Isaiah 11 chapter verse 2, it talks about the work of the Holy Spirit, the function of the Holy Spirit, the spirit of wisdom and understanding, counsel and power, knowledge and the fear of God, delight in the fear of God. और यशायाह 11:2 में लिखा, और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहे। He counsels us of sin, he convicts us of sin when we sin, and he empowers us to come out of sin. तो हमारे को पाप के बारे में बताता है, हम जब पाप कर देते हैं तो हमारे को उसकी गिलानी देता है, और जब हम उसकी माफी मांगते हैं तो हमारे को उस पाप से बाहर निकलने में भी मदद करता है। How do you practically circumcise our hearts before the Lord? तो हम वास्तविक में कैसे अपने हृदय का खतना कर सकते हैं? First of all, our heart will be totally committed to the Lord. सबसे पहली बात, हमारा हृदय परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। Lord, I give my heart to you, give my mind to you, my entire being I give to you. Transform me, Lord. प्रभु, मैं अपने तन को, मन को, बुद्धि को पूरी तरह से आपको समर्पित करता हूँ, आप मुझे बदल दीजिए। Then as the Holy Spirit to counsel us about about our sin, or anything that is not convict us of sin. और पवित्र आत्मा जी हमारे को हमारे पाप के बारे में और उसके बारे में हमारे को उसको बोध कराती है कि तुमने ये पाप किया है। Since sin is deceitful, enters our hearts without us knowing it, only God can reveal to us where our sin is in the heart. और क्योंकि पाप जो है हमारे हृदय में, हमारे अनजाने में हमारे हृदय में आ जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमारा मन धोखेबाज है, और इसलिए परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमारे को बता सकता है कि मेरे हृदय में क्या पाप है। When we have fellowship with the Holy Spirit, जब हमारी संगति पवित्र आत्मा जी के साथ होती है, and ask Him to reveal our sin, He will show secret sins to us. तो जब हम परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु मेरे हृदय के छुपे हुए पाप मुझे प्रकट कर, तो वो आत्मा हमारी मदद करेगा कि हम हमारे उस पापों को हमारे पे प्रकट करें। In Psalm 90 verse 8, Moses wrote the psalm. Moses writes there, भजन 90:8 में मूसा ने ये भजन लिखा, और वो ऐसे लिखता है, You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. तूने हमारे अधर्म के कामों से अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। When you go to God in His presence, all our sins are illuminated. In His presence, there's light. When there's light, all darkness is exposed. जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में ज्योति है, और उस ज्योति में हमारे सारे पाप जो है प्रकट होते हैं। It's very important whenever you go to God in one-to-one prayer, first thing in the morning, or whenever you spend time alone with God, first thing ask Him to show you anything in your heart that displeases God. तो जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, सबसे पहले जब सुबह उठ के प्रार्थना के लिए जाते हैं, सबसे पहले हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मेरे हृदय में जो छुपी हुई बात है, छुपे हुए पाप है, वो आप प्रकट कीजिए। It's very important to have our own personal one-to-one fellowship with God. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं अपने परमेश्वर के साथ मेरा व्यक्तिगत एक से एक सामने सामने का एक रिश्ता हो। No doubt we have all our prayer meetings in the churches, group meetings, prayer meetings, but sometimes when you don't have your own personal time of prayer, you can get lost in other people's prayers in a group. और जब हम सभा में जाते हैं, दूसरे लोगों की संगति में करते हैं, तो वो मुमकिन है कि हम उनकी प्रार्थनाओं में हम खो जाएं और अपना परमेश्वर के साथ जो व्यक्तिगत रिश्ता है वो भूल जाएं। When you go to God one-to-one in prayer, He will show us areas that we are not aware of. जब हम परमेश्वर के पास व्यक्तिगत रूप से आमने सामने मुलाकात करते हैं, तो हमारे हृदय में जो छुपी बातें हैं वो परमेश्वर प्रकट करते हैं। When He reveals that sin in our hearts, when He convicts us of sin, ask Him to anoint you to break that yoke of bondage and to remove the sin. और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे को प्रकट करता है, परमेश्वर से सहायता मांगे कि प्रभु अपने अभिषेक से मुझे इस पाप से दूर कर और मेरे को इससे दूर कर दे। God has given resources for sanctification. परमेश्वर सारे जरिए जिसके कारण से मैं इस पाप से मुक्त हो सकता हूँ, पवित्र हो सकता हूँ, वो उपलब्ध कराएंगे। 1 Peter chapter 1 verse 2 says the Holy Spirit sanctifies us. पहला पत्रस 2:1 में लिखा है, पवित्र आत्मा जी जो है वो हमारे को शुद्ध करता है। No, chapter 1 verse 2, not 2:1. 1 Peter chapter 1 verse 2. हाँ, माफ कीजिए, पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु के लोगों के छिड़काव जाने से तुम चुने गए हो। Okay. Also,
John 17 chapter verse 17, when the Lord prayed to the Father in heaven, he says, sanctify them by the truth, your word is truth. और यूहन्ना 17:17 में भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला प्रार्थना करते समय अपने पिता को कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। So the word of God sanctifies us, the Holy Spirit sanctifies us. तो परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है, परमेश्वर का आत्मा हमें पवित्र करता है। They can have a desire to be sanctified, but the actual sanctification is done by the Spirit of God and the Word of God. ये इच्छा हमारे मन में हो सकती है कि मैं पवित्र हूँ, पर परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमारे को पवित्र करता है। The Holy Spirit brings the Word of God to us, and the Word of God goes into our hearts and minds. It cleanses the heart and mind. पवित्र आत्मा जी जो है परमेश्वर का वचन को हम प्रकट करता है और वो हमारे हृदय के अंदर जाके हमारे मन को, हमारी बुद्धि को उसको पवित्र करता है। In the Old Testament time, there was a prophecy through Jeremiah. In Jeremiah 31st chapter verse 33, God says, I'll put my law in their minds and write it in their hearts. और प्रभु यिर्मयाह 31-33 में प्रभु ने ये वाचा बांधी थी इस्राएल के घराने के साथ कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उसके हृदय पे लिखूंगा और वे मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। As we allow the Holy Spirit to work in us and bring God's word into our hearts, as we receive God's word, the word of God cleanses. और जब हम परमेश्वर के वचन को व्यवस्था को अपने मन में आने देते हैं, उसके आत्मा को हमने हृदय में काम करने देते हैं, तो परमेश्वर का वचन जो है हमारे को पवित्र करता है। In John 15:3, the Lord told the disciples, you are already clean because of the word I've spoken to you. और यूहन्ना 15:3 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। So the word of God sanctifies, it heals. In fact, it heals of all sin. परमेश्वर का वचन जो है वास्तव में तो चंगाई करता है, सारे पापों से हमें चंगा कर देता है। In Psalm 107 verse 20, it's written, He sent forth His word and healed. और भजन 107 उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि वो अपने वचन को भेजता है और हमें पवित्र करता है। So God's word heals, sanctifies, and makes us a people who are pleasing to God. और परमेश्वर का वचन जो हमें चंगा करता है और हमें ऐसा मनुष्य बना देता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होता है। That's why all of us may be very careful about what goes into the heart. इसलिए हमारे हृदय में क्या चीज जा रही है, इसके लिए हमारे को बहुत चौकन्ना होना चाहिए। Was already in the heart, all those unwanted things in the heart, He cleanses by His word and spirit, and He makes us clean. But we have to be prepared in future how to prevent these things going into the heart. परमेश्वर का वचन आत्मा हमारे को पवित्र करता है, इस सारी चीजों से हमें शुद्ध कर देता है, पर हमें इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि दोबारा से इन बातों को अपने हृदय में ना आने दें। In the book of Proverbs, chapter 4, verse 23, it says, guard your heart for this wellspring of life. और यह नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। What's the meaning of wellspring of life? Life comes forth from our heart. Wellspring, like a spring, water comes from the ground in the spring, isn't it? So the heart of man is a wellspring of life. और जीवन का सोता मतलब जो अंदर से फूट के निकलता है, और इसलिए परमेश्वर मनुष्य का जो हृदय में वो है वही उसके जीवन में उसका मूल उसका सोता है। So we have to guard our hearts. इसलिए हमारे को अपने हृदय की रक्षा करनी है। Similarly, a similar verse is found also in the book of Malachi 2:15, where Lord says, "God is spirit." और मलाकी 2:15 में भी इसी तरह की एक बात हमें देखने मिलती है कि इसलिए कि परमेश्वर के योग्य आत्मा चौकस कि तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। So another heart and mind, I told us, heart and spirit are basically the same entity. You must guard what goes into the heart. और हमने जैसे बताया कि ये आत्मा, मन और हृदय जो ये एक ही चीज है, इसलिए हमारे को अपने हृदय की चौकसी करनी है। You could have put off all the old things in the heart and made it clean, but as you look ahead in life, you must be very careful about preventing things getting into the heart. हो सकता है हमने अपने हृदय को शुद्ध किया हो, पुरानी बातें हमने सब निकाल के दूर परमेश्वर के वचन और आत्मा के द्वारा से हमने दूर कर दी हो, शुद्ध हो गए हो, पर हमें को बहुत चौकस रहना है कि वो दोबारा हमारे हृदय में चीजें ना प्रवेश करें। David began as a man after God's own heart. दाऊद की शुरुआत हुई एक ऐसे मनुष्य की जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था। When God chose David to be the future king of Israel, He chose on the basis of what He saw in David's heart.
और दाऊद को जब परमेश्वर ने चुना तो इस बात के लिए चुना था क्योंकि उसने उसके हृदय को देखा था, उसके हृदय में क्या है। When Samuel went to the house of Jesse to anoint one of his sons to be the future king of Israel, he saw the eldest son Eliab and thought he was the one chosen. और जब शमूएल गया जैसी के घर देखने के लिए कि कौन राजा होगा इसमें से, तो उसने जो सबसे बड़ा बेटा था इलियाब, उसको सोचा कि ये उसने उसको सोचा ये इसको मैं अभिषेक करूंगा। And God told Samuel, don't consider the appearance of sight, for I rejected him. परमेश्वर ने शमूएल को बोला तू शारीरिक रूप को मत देख, इसको मैंने जो मनुष्य देखता है मैं उस तरह से नहीं देखता, मैंने इसको तिरस्कार कर दिया है इसका। In fact, in 1 Samuel 16:6, when Samuel saw Eliab, he thought, he didn't say anything, he thought in his mind, this is God's anointed. और जब उसने एलियाब को पहले शमूएल 16:6 में जब उसको देखा तो उसने सोचा यही परमेश्वर के अभिषेक होगा। उसने अपने मन में सोचा, अभी बोला भी नहीं था। And God examined the motivation behind Samuel's thinking. What made him think that appearance and height? और परमेश्वर ने शमूएल के हृदय में क्या बात थी उसको समझ लिया कि कैसे ये सिर्फ रूप को देख रहा है, इसकी डील डॉल को देख रहा है। उस परमेश्वर ने इस बात को जांच लिया। What made Samuel think this God's anointed at the appearance and height? और किस बात से शमूएल ने सोचा कि परमेश्वर का अभिषेक है? उसकी डील डॉल को देख के। God examined the motivation behind Samuel's thinking. और ये बातें थी जिसने शमूएल ने इस बात के आधार पे इसको चुना। And Lord tells Samuel, do not consider appearance and height, for I rejected him. परमेश्वर कहता है कि तू बाहर के रूप को देख रहा है, यहोवा की दृष्टि मन को देती है, इसलिए बाहर के रूप को मत देख, मैंने इसको तिरस्कार कर दिया इसका। God does not look at things man looks at outer appearance, God looks at the heart. हाँ, तो क्योंकि परमेश्वर यहोवा के मनुष्य का अलग है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर यहोवा की दृष्टि मन पे रहती है। What did God see in David's heart? और दाऊद के मन में परमेश्वर ने क्या देखा? He saw a man, a heart seeking the heart of God. उसने उसके मन में देखा ये एक ऐसा मनुष्य का हृदय है जो परमेश्वर के हृदय की परमेश्वर के को ढूंढता है। A man after God's own heart. That's what he saw in David's heart. दाऊद में देखा कि ये परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति है। And then David became a king, and then as he went around fulfilling God's purpose for his life, he also at one point of time he tells God in Psalm 86 verse 11, give me, O Lord, an undivided heart. और जब राजा बन गया उसके बाद उसने अपने राज में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता रहा और फिर वो भजन 86:11 में अपने परमेश्वर से विनती करता है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा, मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। Give me an undivided heart. When he began, he had a whole heart for God, an undivided heart. Then later on, he found the heart is divided. और वो परमेश्वर से विनती करता है कि मुझे एक चित कर, एक मन दे, क्योंकि जब वो परमेश्वर के पास शुरू में आया था तो उसका एक मन था परमेश्वर के लिए। But then later on, divided heart. बाद में उसका हृदय जो था वो बट गया। And of course, God gave him a whole heart, but it happened to anybody, can happen. So constantly we should watch our life very carefully. और बाद में परमेश्वर ने उसको फिर एक चीज किया और ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए हमें लगातार अपने हृदय की चौकसी करनी चाहिए। That's why Paul told Timothy in 1 Timothy 4:16, watch your life and doctrine closely. और इसलिए पौलुस भी तीमुथियुस को लिखते हुए 1 तीमुथी 4:16 में लिखता है, इन बातों पे स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। As we walk with God, we got to put off our old self and completely. And at one point, we'll think, "Oh, I'm fine. I put away all my sin. I'm fine with God." But we must be careful in the future. We don't again let things get into our heart. और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम सोचते हैं मैं तो परमेश्वर के हृदय के अनुसार, परमेश्वर के हृदय के साथ चल रहा हूँ, मेरा मन शुद्ध हो गया है। पर हमारे को बड़ा चौकस रहना है कि हमार वो बातें दोबारा से हमारे हृदय में ना आ जाएं। And then the Holy Spirit helps us. और इस बात में पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करता है। Sin doesn't happen sometimes overnight. It takes time to develop. और ये जो पाप जो है ये अचानक से एकदम से हमारे हृदय में नहीं हो जाता, ये टाइम लेता है, धीरे धीरे आता है। There are different kinds of sins. अलग अलग तरीके के पाप हैं। Some take time to develop in our heart. कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हमारे हृदय में बढ़ने के लिए उन्हें टाइम लगता है। In the book of James chapter 1, 13 to 15 we read, याकूब पहला अध्याय उसकी 13 और 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं, when tempted, no one should say, God is tempting me.
जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, For God can be tempted by evil, not to tempt anyone. क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। Each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and enticed. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। When desire is conceived, it gives birth to sin. When sin is full grown, it leads to death. और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप बढ़ जाता तो वह मृत्यु को उत्पन्न करता है। Here it talks about the conception of desire and the birth of sin. इसलिए वो कह रहा है कि अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। Now, between conception and birth in human terms, in biological terms, it takes about 9 months. और मनुष्य के अगर हिसाब से देखें तो गर्भवती होने और बच्चा जन्मने के अंदर 9 महीना लगता है, But for sin, doesn't take 9 months. और पाप के लिए 9 महीने नहीं लगते। So I tell Christians there's one kind of abortion that God allows. और ये इसलिए भाई मसीह लोग बताते हैं कि एक ऐसा गर्भपात है जो परमेश्वर जिसकी इजाजत देते हैं। Aborting sin in the heart before it becomes sin. The desire in the heart is not right before God. Before it becomes sin, cut it off in your heart. इसलिए अगर कोई अभिलाषा हमारे मन में आती है, उसको पहले ही हटा दें, काट के हटा दें, उसका गर्भपात कर दें, ताकि वो पाप ना बन जाए। I'll give you an example. Suppose someone does something wrong to you, speaks badly about you, gossips about you, you get to hear about it, we'll feel very bad about it. मान लीजिए उदाहरण के लिए आपके बारे में कोई बुरा बोलता है, आपको आपकी बुराई करता है और आपको इससे बहुत दुख पहुंचा, You get hurt, आपको दुख पहुंचा, you get angry, आपको गुस्सा आया you have ill will, और फिर आपके आपके मन में उसके लिए कड़वाहट आई। slowly it leads to bitterness and anger, and bitterness and also hate sometimes. और फिर वो धीरे-धीरे कड़वाहट जो है वो घृणा में बदल जाती है कई बार। It starts off with the insult, then hurt, ill will, anger, bitterness, and hate. और शुरुआत होती है किसी ने आपकी बुराई करी, फिर आपको दुख पहुंचा, फिर आप उसके बारे में आप उसके मन में आपने उसके बारे में बुरा सोचना शुरू किया, फिर एक कड़वाहट आई और फिर आप जो है उसके बारे में घृणा आपके मन में जाती है। इस तरह से ये बढ़ती चली जाती है। Slowly develops in your heart. It's not outside. But one day becomes hate. One day start speaking badly about the person. Mouth speaks loose words, and then you criticize and slander that person. और ये एकदम से नहीं, धीरे-धीरे हमारे मन में आ जाती है और एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम भी उस व्यक्ति के बारे में बुरा बोलने लगते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं और ये बातें शुरू हो जाती हैं। I have a desire in my heart to go and retaliate with that person, and it leads to sin, and you pull that person down. और मेरे मन में ये इच्छा आ जाती है कि मैं किसी तरह से इस व्यक्ति को नीचा करूं, उसको बुरा करूं, इसको नीचा दिखाऊं। When you go before God in prayer, He will show you the beginnings of that bitterness. और अगर हम परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर धीरे-धीरे इस कड़वाहट को दूर करते हैं। And you find in book of Mark 11 chapter 24-25 the Lord says, मरकुस 11, 23 और 24 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, whatever you ask for in prayer, believe receive to be yours. और परमेश्वर कहते हैं कि जो कि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। And when you stand praying, you remember hold anything against anybody, forgive him, that your heavenly Father will forgive you. इसलिए मैं तुमसे कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Next verse. 25th verse. हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। When you go to God one-to-one prayer, He will show you the beginnings of bitterness and throw it away. Don't allow that to become a sin in the way you speak or react to that person. और जब परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाएंगे तो हमारे मन में की जो बात को दिखाएगा और हम प्रार्थना करके उसको दूर कर सकते हैं और धीरे-धीरे उस पाप को हम बढ़ने नहीं देंगे। So Holy Spirit helps us in our weakness. He will show us. So we have a helper who will keep us safe and not allow us to sin when we depend upon Him. और पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करेंगे, हमारे को इससे बाहर निकलने में मदद करेंगे और
हम अगर हमारे में इच्छा है तो उस पाप को हमारे हृदय में बढ़ने से भी रोकेंगे। You must make it a lifestyle whenever you go to God in prayer one to one. Then we set up some time for Him to show us our hearts. And once He shows something, put it away and then move on. और हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरे मन में जो भी हृदय में छुपी हुई बात है, पाप है, उसको आप दिखाए। परमेश्वर जब प्रकट कर देते हैं उस पाप को, तो हमारे को एकदम से उसको दूर करके और आगे बढ़ जाना चाहिए। So we be very careful about what we see and what we hear. What we see and what we hear affects the mind. And from the mind, all these things enter into our hearts. तो हमारे को बड़ा चौकस होना है कि मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं के द्वारा से ये सब बातें जो हैं मेरे हृदय में प्रवेश करती हैं। In Jeremiah chapter 4, verse 14, we read, God says, O Jerusalem, wash the sin from your heart and be saved. How long will you harbor wicked thoughts? और ये परमेश्वर बोलते हैं यिर्मयाह 4:14 में, हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? When you keep on thinking wrong things, which is based on what you see and what you hear, from the mind, those things get into the heart. जब हम व्यर्थ की कल्पनाएं करते रहेंगे, उस बात पे आधारित कि हमने क्या सुना था, क्या देखा था, और कल्पनाएं करते रहेंगे, तो वो बातें हमारे हृदय में, हमारे हृदय में और विचार में प्रवेश कर जाएगी। So ultimately, it's question of what we see, what we hear, and then the mind processes it. And the mind said, put away all those thoughts, then it won't go into the heart. तो जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, उसको हमें उसको उस पे अपने हमारे दिमाग में जब जाते हैं, हमें उस पर कल्पना नहीं करनी, उसको वहीं से हटा देना है, ताकि वो हमारे हृदय में ना चली जाए। Next week, I'm going to speak about mind. Mind and heart are very much related. और अगली बार परमेश्वर भाई जो हैं वो बुद्धि पे बात करेंगे, क्योंकि मन और जो बुद्धि है वो एक साथ काम करते हैं। We neglect so often what we think because people don't know what we think. We don't care about heart because people don't know our hearts. और हम बहुत दफे हम जो सोचते हैं उसको नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम ये बात नहीं जानते कि जो हम सोच रहे हैं वो हमारे मन को, हमारे हृदय को दूषित करता है। We are so concerned about how we live that because people see how we live, we're very concerned about what we speak because people can hear what we speak. We're not concerned about the heart and mind because God knows our hearts and mind. People don't know. If you're a people pleaser, then we'll only concern about what we live, how we live and what we speak. और हम जो है इसी बात पे अगर ध्यान देते रहेंगे कि लोग क्या देख रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, और इस लोगों को प्रसन्न करने वाला हम जीवन होंगे, तो हम हमारा मन जो है दूषित हो जाएगा। तो हमारे को हर समय ये देखना है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हूँ, मेरा मन जो है परमेश्वर के हृदय के अनुसार हो। God examines our hearts and He also knows our thoughts. He examines our thinking. परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, हमारे मन को जांचता है, हम क्या विचार कर रहे हैं, इसको भी वो जानता है, जांचता है। In Psalm 94 verse 11 is written, for God knows the thoughts, He knows they are futile. और भजन 94 उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर जो है हमारी कल्पनाओं को जानता है कि वो मिथ्ये हैं। Once you're careful about the inner man, the heart of man, don't worry about your life. It will all flow from your heart, which is made clean by the amazing grace of the Lord. और एक बार जब हमारा हृदय परमेश्वर के आत्मा और वचन के द्वारा शुद्ध हो जाता है, तो हम चिंता ना करें, परमेश्वर अपने आप हमारे को प्रयोग करेगा। Well, put away all the wrong things in the heart. We must fill our hearts with God's word, which cleanses, and the anointing of the Holy Spirit that makes us understand where we are wrong and empowers us to come out of that sin. तो पवित्र आत्मा जी हमारे को और वचन हमारे को तैयार करेगा कि कैसे हमारे हृदय में जो बेकार की बातें हैं उसको हम दूर कर सके, और एक बार हम शुद्ध हो जाएंगे तो हमारा हृदय परमेश्वर के हृदय के अनुसार हो जाएगा। The Bible exhorts us in Colossians 3:16 to let the word of Christ dwell in us richly, because the word cleanses, word sanctifies. और कुलोसियों 3:16 में भी इस बात को लिखा है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। You must always ensure our heart is right before God and truly be a people whose heart and mind seek of the heart and mind of God. हमें हर समय परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए और परमेश्वर के हृदय के अनुसार, उसके उसके मन के अनुसार परमेश्वर हमारे को चलना चाहिए। May God bless each one of us.